جو ذمہ داری اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا کیا؟ تمہارے باپ کو میرے اور اپنے لیے اس عمر میں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنی مرضی سے کر رہے، میں نے کیا کرے؟ ہاں تو نہ کرے نا۔ اپنی مرضی سے نہیں، مجبوری میں کر رہے ہیں کام۔ دیکھیں امی، میرے پاس نا آپ کی ان جلی کٹی باتوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں، مجھے جانا ہے کہیں۔ کم از کم اپنا حصہ بھر دینا، بل آ گیا ہے۔ فی الحال پیسے نہیں ہے میرے پاس، کل دے دوں گا۔ تمہارے لیے سوپ بنوا دیا۔ تھینک یو ماما۔ اپنے نواسے کا نام میں خود رکھوں گی۔ نہیں ماما، میں نے آلریڈی نام سوچ لیا ہے، میں اپنے شہزادے کا نام خود رکھوں گی۔ کیا نام سوچا؟ ارحم المیر۔ اچھا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی تمہاری خوشی میں ہم سب خوش ہیں۔ اچھا ماما، زین کہاں ہے؟ اسے سلا کے تمہارے پاس آئی تھی نا۔ زین اوپر سو رہا ہے، نینی کے پاس ہے۔ آپ نا المیر کو کال کرتے ہیں، انہیں کہیں کہ وہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، میں کال کر دیتی ہوں۔ اوکے۔ تمہارے لیے سوپ بھجواتی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ پی لینا۔ ہیلو، السلام علیکم ممی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک۔ سیب، آپ کو بہت مبارک ہو۔ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے بیٹا، میں کس طرح تم سے معافی مانگوں؟ نہیں امی، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ شاویر کو آخر ہو کیا گیا ہے، وہ ایک دم سے اتنا کیسے بدل گیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، میرا زاویار کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ چلو اس کا اور اپنا بہت خیال رکھنا، اچھا؟ رکھتی ہوں، بہت خیال رکھتی۔ اچھا بیٹا ایمان، وہ تمہارا کچھ سامان ہے میرے پاس رکھا ہے، تم آ جاؤ، مجھ سے مل بھی لینا اسی بہانے۔ آتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ امی مجھے آفس میں ایک ضروری کام ہے، میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ آنا ضرور، ہاں ٹھیک ہے بیٹا۔ مہنور نے آہستہ سانس لیا، جیسے بہت کچھ کہنے کو دل چاہ رہا ہو مگر زبان روک رہی ہو، پھر بغیر اس کی طرف دیکھے بولی، خواہشیں اکثر انسان کی دشمن بن جاتی ہیں شامیر، میں نے وہی کیا جو میرے لیے ضروری تھا، بس تم اتنا جان لو کہ میں یہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ اس کے انداز میں نہ محبت تھی، نہ نرمی، نہ گھبراہٹ، صرف ایک ایسی ٹھنڈی سنجیدگی جو شامر کے دل میں اور بھی بے چینی ڈال گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نکاح کے پیچھے کوئی لمبی کہانی ہے، کوئی چھپا ہوا دکھ، کوئی خطرہ، یا شاید کوئی انتقام۔ رات گہری ہوتی گئی مگر شامر کے ذہن کی الجھنیں ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھیں۔ وہ سوچتا رہا کہ مہنور نے اپنے باپ کو کیوں سب کچھ بتایا؟ اس نے اس رشتے کے لیے ہاں کیوں کی؟ اگر وہ دولت کی لالچی ہوتی تو کم،
उस कम खुशी और नरमी का एक चेहरा तो दिखा थी, मगर यहाँ तो मामला उल्टा था। वो जितनी चुप थी इतनी ही मजबूत दिखाई दे रही थी। लगता था जैसे वो किसी ऐसे मकसद के साथ इस घर में दाखिल हुई है जिस का इल्म अभी किसी को नहीं, और शायद जब वो मकसद सामने आएगा तो सबकी जिंदगियां बदल जाएंगी। महनूर की खामोशी घर की दीवारों तक में सरायत करती जा रही थी। अगली सुबह जब वो किचन में दाखिल हुई तो पूरा घर उसके कदमों की चाप तक सुन रहा था। शामिर की माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी नीयत और नीयत के पीछे छिपा हर राज पढ़ लेना चाहती हो। मगर महनूर के चेहरे पर वही अजीब सी मजबूती, वही अजीब सी बेनियाजी कायम थी। शामिर की माँ ने तंजिया अंदाज में कहा, बेटी, यहाँ इतनी संजीदगी नहीं चलती, ये घर है, कोई अदालत नहीं, कम से कम घर वालों से तो बात कर लिया करो। महनूर ने थोड़ा सा सिर झुकाया, लेकिन जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं कोशिश करूंगी। ये एक आम सा जुमला था, मगर उसमें वो एतमाद छुपा था जो शामिर की माँ को और भी खटका। उसने दिल में सोचा कि ये लड़की या तो बहुत समझदार है या बहुत खतरनाक। दिन गुजरते गए मगर महनूर का रवैया न बदला। वो घर के काम करती, इज्जत से पेश आती, मगर बिल्कुल अंदर दाखिल नहीं होती, न किसी के दिल में न किसी की बातों में, जैसे वो इस घर में रहकर भी खुद को एक दायरे के अंदर कैद रखे हुए हो, जहां कोई उस तक पहुंच नहीं सकता। एक रात शामिर ने साफ लफ्जों में पूछ ही लिया, महनूर, तुम्हें डर किस बात का है, या तुम यहाँ कुछ साबित करने आई हो? महनूर ने उस लम्हे पहली बार सईदी आंखों में देखा। उसकी नजरें गहरी, मजबूत और अजीब हद तक तल्ख थीं। डर? वो हल्के से मुस्कुराई। इंसान वहां डरता है जहां कुछ खोने का खौफ हो, और मेरे पास खोने को कुछ नहीं। उस एक जुमले ने शामिर को झंझोड़ दिया। कुछ नहीं? क्या वाकई उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, या वो सब कुछ छिपा रही है? शामिर ने महसूस किया कि महनूर के इर्द गिर्द एक ऐसा राज है जैसे आग के गर्द धुआं, जिसकी असल शक्ल अभी दिखाई नहीं देती, मगर उसकी तपिश हर तरफ महसूस हो रही है। घर वालों की नजरों में भी अब सवाल बढ़ रहे थे। सब सोच रहे थे कि ये लड़की जो इतनी मजबूत, इतनी खामोश और इतनी बेनियाज है, आखिर किस मकसद के लिए उस घर में आई है। और सबसे ज्यादा शामिर के दिल में ये ख्याल फैलने लगा कि शायद महनूर की जिंदगी में कोई ऐसा सच छुपा है जो सामने आया तो सब कुछ बदल कर रख देगा। शामिर की जिंदगी भी और उस घर की तकदीर भी। घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगा था, मगर ये तब्दीली किसी खुशगवार एहसास की वजह से नहीं थी, बल्कि एक मुसलसल बेचैनी, एक अनजानी सी घटन थी जो सबको अंदर ही अंदर खा। घर में खामोशी अब एक अजीब सी बेबसी की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। हर कोई अपनी जगह महनूर को देख कर कुछ न कुछ सोचता था, मगर खुलकर कोई कुछ कह नहीं पाता था। महनूर की मौजूदगी जैसे इस घर में एक न दिखाई देने वाली दीवार खड़ी कर चुकी थी, जिसके उस तरफ वो खुद थी और इस तरफ बाकी सब। एक शाम जब बारिश बहुत जोर से हो रही थी, बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूब गया। ऐसे माहौल में आम तौर पर लोग एक दूसरे के करीब बैठकर वक्त गुजार लेते हैं, मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ था। शामिर ने जब मोबाइल की रोशनी में घर का हाल देखा तो महनूर सहन के कोने में खड़ी बाहर बरसती हुई बारिश को घूर रही थी, जैसे उस बारिश में कोई याद, कोई दुख या कोई पुराना जख्म छिपा हो। शामिर आहिस्ता से उसके करीब आया और बोला, महनूर, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? महनूर ने जरा सा सिर मोड़कर कहा, इंसान असल में वहीं वापस जाता है जहां से भाग कर आया हो। मैं भी शायद अपने ही अंदर वापस जा रही हूं। उसके लफ्जों ने शामिर के दिल में एक और तूफान बर्पा कर दिया। उसने महसूस किया कि इस लड़की के अंदर कुछ ऐसा है जिसे वो किसी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहती, मगर वो चीज उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। बारिश की बूंदें तेज हो गईं और महनूर के चेहरे पर गिरती हुई बारिश और आंसुओं के दरमियान फर्क करना मुश्किल था। शामिर ने पहली बार उसके लहजे में टूट फूट सनी, ऐसी टूट फूट जो सारी दुनिया से छिपाई जा रही हो। उसी दौरान शामिर की माँ भी लाबी में आई। उसने महनूर की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, हमने कभी अपनी बहू को यूं तन्हा बारिश में खड़े नहीं देखा। ये क्या डरामा है? महनूर ने फौरन दुपट्टा समेटा और बोली, माफ कीजिए, मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं था। मगर शामिर की माँ की नज़र में एक नया शक पैदा हो चुका था। उसने औरतों वाली नज़र से महनूर को देखा, तजुर्बे वाली, सोच वाली नज़र से, और उसे लगा कि इस लड़की के दिल में एक ऐसा राज है जो जब खुलेगा पूरा घर हलकर रह जाएगा।
रात गए जब सब सो गए, शमीर ने महसूस क्या कि महनूर अपने बैग से कोई पुराना कागज निकाल कर बार बार पढ़ रही है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था, दर्द भी, खौफ भी और फैसला भी। कागज जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज हो, कागज जैसे उस निकाह की असल वजह हो, कागज जैसे उस घर में आने का मकसद हो। शामिर दरवाजे की ओर से ये सब देखता रहा, बेआवाज, बेबस, बेहद हैरान। और पहली बार उसे यकीन होने लगा कि महनूर उसके घर किसी मोहब्बत, किसी आस या किसी मुस्तकबल के ख्वाब के साथ नहीं आई। वो किसी हिसाब चुकाने आई है, किसी इंतकाम के साथ, या किसी ऐसा सच सामने लाने के लिए जिससे उस घर की बुनियादें तक लरज सकती हैं। महनूर के हाथ में मौजूद वो पुराना कागज इस रात की फजा को मजीद संगीन बिना रहा था। उसके चेहरे पर बदलती हुई कैफियत दर्द, गुस्सा और कहीं कहीं बेबसी ऐसी थी जैसे वो किसी बहुत बड़े फैसला लेने के दहाने पर खड़ी हो। शामिर दरवाजे की ओट में खड़ा सब देख रहा था, मगर हिम्मत न हुई कि उससे पूछ सके कि ये कागज है क्या, और ये उसके दिल में ऐसा कौन सा तूफान उठा रहा है। अगली सुबह घर का माहौल पहले से ज्यादा अजीब था। नाश्ते की मेज पर महनूर खामोश बैठी रही, मगर उसकी आंखों के नीचे हल्के सूजे हुए निशान साफ बता रहे थे कि वो पूरी रात जागती रही है। शामिर की माँ ने ये बात फौरन नोट की ओर तंजिया लहजे में कह बैठी, ये तो रातों की नींद उड़ने वाली बातें लगती हैं, या तो किसी बात का खौफ है या कोई राज जो दिल पर भारी हो रहा है। महनूर ने नजरें झुका लें, मगर उसका दिल जैसे एक लम्हे के लिए लर्ज कर रह गया। शामिर ये सब देख रहा था और उसके दिल में बेचैनी मजीद गहरी हो गई। दोपहर के वक्त जब घर के सब लोग मसरूफ थे, महनूर ने दोबारा उसी स्टोर रूम का रख किया। इस बार दरवाजा बंद था, मगर उसने सांस भरते हुए आहिस्ता से कंडी खोली। अंदर दाखिल होते ही एक जंग आलूद स्टील का बक्स उसकी नजर में आया। वो झुककर इस बक्स को गौर से देखने लगी। ये बक्स मामूली नहीं था, जैसे वो कुछ ऐसा अपने अंदर छिपाए हुए हो जिसकी तलाश में महनूर यहां आई थी। जैसे ही महनूर ने बक्स का ताला हाथ में लिया, शमीर की आवाज सुनाई दी, ये बक्स तुम क्यों खोल रही हो? महनूर चौंक कर खड़ी हो गई। घबराहट पहली बार उसके चेहरे पर वाज़िह नजर आई। उसने कपड़े का कोना मजबूती से मुरोड़ा और आहिस्ता से बोली, मैं बस सफाई कर रही थी। शामिर आगे बढ़ा और बक्स के करीब बैठ गया। महनूर, झूठ तुम्हारे मिजाज का हिस्सा नहीं लगता। कुछ छुपा रही हो वो अलग बात है, मगर झूठ वो तुमसे हो नहीं पाता। महनूर की आंखों में चंद लम्हों के लिए बेबसी चमकी, जैसे उसके अंदर की दीवारों में दरार पड़ने लगी हो, मगर फिर उसने खुद को संभाल लिया और मजबूत लहजे में बोली, कुछ चीजें वक्त आने पर ही बताई जा सकती हैं शमीर। शामिर ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, और अगर वो वक्त कभी न आया तो क्या तुम यूं ही मेरे घर, मेरी जिंदगी और मेरे दिल को आजमाइश में डालती रहोगी? महनूर की लब कांपे, मगर आवाज मजबूत रही। अगर मैं कुछ बताऊंगी तो शायद तुम सब कुछ खो बैठोगे। बेहतर है कि सच अभी न खुले। ये सुनकर शामिर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। खो बैठेगा? क्या? किससे खतरा है? किसका हाथ है उस सब में? जैसे ही वो बाहर निकला, उसने महसूस किया कि महनूर की आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सा खौफ अब रहा था। किसी शख्स का खौफ, किसी वाक़ये का या किसी सच का। रात को शामिर की मां ने अपना शक खुलकर जाहिर कर दिया, मुझे यकीन है इस लड़की के आने के पीछे कोई ना कोई खतरनाक बात है। देख लेना, ये घर सुकून से नहीं रहने देगी। और वाकई उसी रात जब सब सो रहे थे, घर के मेन गेट पर हल्की सी दस्तक हुई। महनूर के कान फौरन खड़े हो गए। उसका दिल तेजी से धड़का। वो जानती थी कि ये दस्तक मामूली नहीं है। वो आहिस्ता से उठकर बाहर आई। बरामदे में सिर्फ हल्की चांदनी थी। दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था, जिसे देखते ही महनूर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शख्स धीरे से बोला, तुमने सोचा था मुझसे भागकर यहां छिप जाओगी? महनूर, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। महनूर के कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। दरवाजे के आगे खड़ा वो शख्स एक सियाह साया भीगी हुई रात में जैसे खुद इंधेरा बनकर खड़ा हो। महनूर का सांस रोक देने के लिए काफी था। उसके हाथ कपकपा रहे थे और होंठों पर हल्की सी लर्जिश थी, मगर उसकी आंखों में वही जद, वही जलन, वही घबराहट और कहीं बहुत गहरी तकलीफ। सब कुछ एक साथ समट आया था। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम रखना चाहता था, मगर महनूर ने फौरन दरवाजे के कोने को पकड़कर रोका। जैसे उसमें अचानक एक ताकत पैदा हो गई हो। वो हल्की मगर खतरनाक आवाज में बोली, तुम यहां नहीं आ सकते। मैंने कहा था कि सब खत्म हो गया है। वो शख्स धीरे से मुस्कुराया
और वो मुस्कुराहट इतनी सोची समझी, इतनी जहर भरी थी कि रात की हुआ तक महनूर की आंखों से बहते आंसू अब महज दुख नहीं थे, वो खौफ, पछतावे और बरसों की अज़ियत का बोझ थे जो उसके दिल में भरा हुआ था और अब फटकर बाहर आ रहा था। शामिर ने पहली बार उसे यूं टोटे हुए देखा था। वो समझ रहा था कि ये कोई आम कहानी नहीं, कोई आम मसला नहीं। महनूर की जिंदगी में कुछ बहुत गहरा, बहुत खतरनाक और बहुत पेचीदा है। वो उसे पकड़कर बैठक में ले आया, जहां सिर्फ हल्की सी रात की रोशनी थी। बारिश की टिप टिप अब भी चल रही थी, मगर इस घर के अंदर जो तूफान पिछले कुछ लम्हों में उठा था, वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। शामिर ने नर्म आवाज में पूछा, महनूर, अब मजीद खामोशी हमें सबके लिए खतरा बना देगी। मुझे बताओ, वो शख्स कौन था? तुम उससे क्यों इतनी डरी हुई हो? महनूर ने हाथ दोपटे में भींच लिए और बहुत देर बाद बोली, वो मेरा शौहर नहीं था, मगर वो मुझे अपना हक समझता था। वो इंसान नहीं, एक भेड़िया है शामिर, जिसके साथ रहते हुए हर दिन मौत जैसा लगता था। शामिर ने चौंक कर पूछा, मगर तुमने कहा था कि तुमने अपने अब्बू की इजाजत से निकाह किया। महनूर की आंखों में फिर वही अंधेरा लौट आया। हाँ, मैंने निकाह किया तुमसे, मगर उससे पहले इस शख्स के साथ मंगनियस हुई थी। वो मंगनी मेरी मर्जी से नहीं थी, मेरे बाप ने मजबूरी में की थी, क्योंकि वो शख्स उन पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा कर बैठा था। वो कर्ज नहीं था, जाल था, और हम उस जाल में फंस गए थे। शामिर की आंखों में हैरत और गुस्से की चमक पैदा हुई। और तुमने कभी बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें उस सब से बचा सकता था। महनूर ने टूटे हुए लहजे में कहा, अगर बता देती तो तुम मुझे अपना ही समझ बैठते, और फिर वो शख्स सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी नुकसान पहुंचाता। ओह, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए निकाह किया, ताकि वो समझे कि मैं अब महफूज हूं। किसी और के निकाह में शायद वो पीछा छोड़ देगा, मगर वो बाज आने वाला नहीं है। शामिर ने गहरी सांस ली। उसने तुम्हें धमकाया है? महनूर के दिल पर जैसे कोई पुराना जख्म खुल गया। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। वो कहता था कि अगर मैंने इनकार किया तो वो मेरे घर वालों को, मेरे बाप को और मुझे नुकसान पहुंचाएगा। एक रात उसने मुझे कहा था, अगर तुम किसी और की हो गई तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। मैंने समझा था ये सिर्फ धमकी है, मगर वो शख्स जो आज रात यहां आया था, वो धमकी नहीं, हकीकत है। शामिर का खून खोल उठा। वो मेरे घर आकर मुझे धमकी देकर गया है, और तुम सोच रही थी कि मैं ये सब सुनकर भी चुप रहूंगा। नहीं महनूर, अब इस खेल का अंजाम मैं तय करूंगा। महनूर ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे रोकना चाहती हो। नहीं शामिर, वो बहुत खतरनाक है। वह गंदे लोगों के साथ उठता बैठता है। उसका एक इशारा और किसी की जिंदगी पल भर में बदल सकती है। मैंने उससे भागने के लिए निकाह किया था, ताकि मैं उसकी दस्तरस से दूर हो जाऊं, मगर वो मुझे यहां तक ढूंढ लाया। अब वो तुम्हें भी निशाने पर ले लेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। शामिर ने पहली बार उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, महनूर, तुम अब अकेली नहीं हो। अगर तुम्हारा माजी दरवाजे पर आकर खड़ा हो रहा है तो उसे जवाब देने का हक भी मेरा बनता है। ये निकाह सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं, अब ये हमारे रिश्ते की जिम्मेदारी है, और तुम्हें ये बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। शमशीर की माँ के अल्फाज महनूर के जहन में अब भी हथौड़े की तरह बज रहे थे। ये लड़की किस नीयत से आई है? पता नहीं कौन सा खेल खेलने आई है मेरे बेटे के साथ। पहली बीवी को तो उसने घर से निकाल दिया, अब क्या चाहती है? महनूर खामोश खड़ी सब कुछ सुनती रही, मगर उसके अंदर एक चिंगारी जलती जा रही थी। वो जानती थी कि उसकी खामोशी को कमजोरी समझा जा रहा है, लेकिन वो भी इतनी ही जद्दी थी कि वक्त आने से पहले अपने पते जाहिर नहीं करना चाहती थी। कमरे में वापस आकर उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया। शामिर अंदर पहले से मौजूद था, मगर उसके चेहरे पर वही उलझन, वही खौफ और वही बेचैनी थी जो पिछले चंद दिनों से उसकी आंखों में बसी हुई थी। वो महनूर को देख कर उठा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज उसके होंठों तक आकर रख गए। महनूर, अम्मी ने कुछ गलत कहा हो तो वो रख गया। शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे समझाए, कैसे वजाहत करे। महनूर ने सारी बात काटते हुए सिर्फ इतना कहा, लोग वही कहते हैं जिससे उन्हें डर लगता हो। तुम्हारी माँ को मुझसे मसला नहीं, उसे मेरे वानेन से मसला है। शामिर उसके उस जवाब से मजीद परेशान हो गया। आने से तुम क्या कहना चाहती हो? महनूर ने आहिस्ता चलते हुए खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया। बाहर रात गहरी और खामोश थी।
मगर उसकी आंखों में अजीब सा इत्तराब था। ये निकाह, ये फैसला मैंने यूं ही नहीं किया था। कुछ लोग बहुत देर से मेरा ताकुब कर रहे हैं, कुछ हिसाब बहुत पुराने हैं। मैं इस घर में इसलिए नहीं आई कि मुझे सहूलतें चाहिए, मैं इसलिए आई हूं कि मुझे किसी महफूज जगह की जरूरत थी। शामियर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। ट्याकब कौन? तुम ये सब पहले क्यों नहीं बताती? महनूर ने पहली बार नजरें उठाकर उसे देखा, वो नजर जो सीधी इंसान के दिल के अंदर जाकर बैठ जाती थी। तुम पर भरोसा नहीं था, और हकीकत यह है कि अब भी नहीं है। शामियर एक कदम पीछे हट गया। उसने ये तवक्का नहीं की थी। महनूर ने एक सर्द सांस भरी। तुम समझते हो मैं तुम्हारी दौलत के पीछे आई हूं, या तुम्हारी पहली बीवी की जगह लेने? नहीं शामियर, मेरा मकसद बहुत मुख्तलिफ है। वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। लेकिन अब भी एक बात जान लो, मैं यहाँ मजबूरी में आई हूं, कमजोरी में नहीं। शामियर के जहन में जैसे हजारों सवाल भड़क उठे। ये कैसी मजबूरी थी? कौन उसका पीछा कर रहा था? निकाह ही रास्ता क्यों बचा था? और सबसे बढ़कर क्या महनूर की मौजूदगी इन सब के लिए खतरा थी? ये सवालात अब इस घर में एक नए तूफान का पेश खीमा बनने वाले थे। रात का सुकून अब घबराहट में बदल चुका था। महनूर के जहन में एक तूफान चल रहा था जो उसकी हर हरकत, हर सांस और हर लम्हे को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। शामियर की मौजूदगी, उसकी आंखों में फैली उलझन और तशवीश महनूर के दिल की धड़कने और खौफ को मजीद बढ़ा रहे थे। वो जानती थी कि शामियर ने अभी तक उसके माजी का अधूरा राज नहीं जाना, और वो भी हर लम्हे के साथ ये राज खोलने का वक्त बढ़ा रही थी, क्योंकि जब वो वक्त आएगा तो ये सब कुछ सबके सामने होगा और फिर कोई भी वापस नहीं जा सकेगा। महनूर की रात भर जागती हुई आंखें अब हल्की सी थक्कन के बावजूद होशमंद थीं। वो अपने कमरे के छोटे से कोने में बैठी थी, हाथ तौपटे में मुरोड़ते और दिल की धड़कनें तेज। हर लम्हा इसके जहन में वो शख्स जाग रहा था जो आज रात दरवाजे पर आया था। वो शख्स जिसका खौफ उसकी हर सोच, हर फैसला और हर हरकत को काबू में रखता था। वो जानती थी कि शामियर चाहे कितना भी मजबूत हो, अभी तक उसके माजी का अधूरा राज नहीं जान सका, और जब ये राज सामने आएगा तो शायद न सिर्फ शामियर बल्कि पूरा घर उसके असर से लुरुस जाएगा। सुबह के वक्त भी महनूर की बेचैनी कम नहीं हुई थी। शामियर के साथ वो लम्हे अब भी उसके जहन में थे, और बारिश के छोटे कतरे जो अभी भी बाहर टिपक रहे थे, जैसे उसके दिल की धड़कनों की अक्कासी कर रहे हों। शामिर उसके करीब आया और आहिस्ता मगर पर असर लहजे में पूछा, महनूर, तुम मुझे सब कुछ बताओगी? मुझे सब कुछ जानना है ताकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रह सकूं। महनूर ने झुकी हुई नजरों से आहिस्ता कहा, शामिर, सब कुछ अभी नहीं बता सकती। अगर ये राज अभी खुल जाए तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा खानदान भी खतरे में आ जाएगा। यही वजह है कि मैंने निकाह किया तुम्हारी हिफाजत के लिए। शामिर ने उसके हाथ पकड़कर मजबूती से कहा, महनूर, तुम अकेली नहीं हो। जो भी खतरा हो, जो भी माजी हो, हम सब उसे साथ मिलकर खत्म करेंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी के बोझ अकेले उठाने की जरूरत नहीं। महनूर ने पहली बार शामिर की बातों में सच्चाई और यकीन देखा। उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ उम्मीद की किरण भी नमूदार हुई, मगर वो जानती थी कि बाहर वो शख्स अभी भी कहीं मौजूद है, एक साया जो उसकी जिंदगी में किसी भी लम्हे घुस सकता है और माजी की धमकियों को हकीकत में बदल सकता है। अब ये कहानी एक नए मरहले पर आ चुकी थी, जहां महनूर की मोहब्बत, शामिर की हिफाजत और माजी के खतरात एक दूसरे के साथ जड़कर एक तूफानी अंजाम की जानब बढ़ रहे थे। हर लम्हा, हर फैसला और हर राज इस घर की बुनियादें हिला देने वाला था, और महनूर जानती थी कि अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, मजबूत रहना और शामिर के साथ मिलकर हर खतरे का सामना करना।
रात का सुकून अब मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और घर में एक दबे हुए खौफ की फजा छा गई थी। महनूर अपने कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। हर लम्हा उसके ज़हन में वो शख्स आ रहा था जो आज रात दरवाजे पर खड़ा था, वो शख्स जिससे उसकी जिंदगी का हर लम्हा वाबिस्ता था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें बेकाबू और हाथ मुसलसल दुपट्टे में मरोड़ते हुए थकन के बावजूद हल रहे थे। महनूर जानती थी कि अगर ये राज शामियर के सामने आज खुल गया तो शायद न सिर्फ शामियर बल्कि पूरा खानदान उसके असर से लुढ़स जाएगा। सुबह के पहले धूप के साथ ही महनूर की बेचैनी कम नहीं हुई थी। शामियर ने उसे करीब देखकर पूछा, महनूर, ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों छुपाती रही? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ बताओ ताकि हम सब मिलकर खतरे का सामना कर सकें। महनूर ने हल्की सी लर्जिश के साथ जवाब दिया, शमायर, मैं नहीं चाहती कि तुम या कोई और इस राज की लिपेट में आए। यही वजह है कि मैंने ये निकाह किया तुम्हारी हिफाजत के लिए। मैंने तुम्हें अपने मादी की हकीकतों से दूर रखने के लिए ये कदम उठाया ताकि कम अज कम तुम महफूज रहो। शामिर ने उसके हाथ मजबूती से थामे और प्राज़्म लहजे में कहा, महनूर, तुम्हें यह सब बोझ अकेले नहीं उठाना। जो भी खतरा हो, जो भी माजी हो, हम सब उसे साथ मिलकर खत्म करेंगे। तुम अकेली नहीं हो और न कभी होगी। महनूर की आंखों में पहली बार खौफ और दर्द के साथ साथ उम्मीद कि करण भी नमूदार हुई, लेकिन बाहर अभी भी वो साया मौजूद था, वो शख्स जो उसके माजी की धमकी और खौफ का सबब था। महनूर जानती थी कि अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, मजबूत रहना, अपनी अक्ल और हौसले से हर चाल का मुकाबला करना और शामियर के साथ मिलकर अपने और उस घर की हिफाजत करना। ये लम्हा कहानी का वो सिंग मेल था जहां मोहब्बत, खौफ, मादी के राज और आने वाले खतरात एक साथ जुड़कर तूफानी अंजाम की जानिब बढ़ रहे थे। हर लम्हा एक नया सवाल खड़ा कर रहा था, हर राज खुलने के लिए तैयार था और हर फैसला मुस्तकबल की बुनियादें हिला देने वाला था। महनूर जानती थी कि अब वो सिर्फ इंतजार नहीं कर सकती, वक्त के साथ हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि उसका हर इंतखाब न सिर्फ इसकी बल्कि शामिर की और इस घर के तमाम लोगों की जिंदगी बदल सकता था। रात की खामोशी अब तकरीबन घटन बनकर महनूर के कमरे में घुस चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा, सरफ बारिश की हल्की टप टप और बाहर के दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। महनूर अपने बेड के किनारे बैठी थी, दुपट्टे में हाथ मरोड़ते, और दिल की धड़कनें इस हद तक तेज थीं कि उसे हर लम्हे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो जानती थी कि आज की रात उसके लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि वो शख्स जो अभी भी बाहर कहीं खड़ा था, इसका माजी, उसकी धमकी और उसके खौफ का सबब उसके हर लम्हे पर छाया हुआ था। शामिर कमरे में आहिस्ता दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर उलझन, फिक्र और हिफाजत की मक्स कैफियत नुमायां थी। उसने महनूर के करीब आकर आहिस्ता से पूछा, महनूर, क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगी? मैं चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूं और हर खतरे का मुकाबला कर सकूं। महनूर ने नजर नीची कर ली, सांसें भारी और आहिस्ता बोली, शामिर, अभी नहीं। अगर ये राज आज खुल गया तो तुम्हारा खानदान सब खतरे में पड़ जाएंगे। यही वजह है कि मैंने ये निकाह किया तुम्हारी हिफाजत के लिए। मैंने तुम्हें अपने मादी की हकीकत से दूर रखने के लिए ये कदम उठाया ताकि कम अज कम तुम महफूज रहो। शामिर ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर मजबूत लहजे में कहा, महनूर, तुम्हें यह सब बोझ अकेले नहीं उठाना। जो भी खतरा हो, जो भी माजी हो, हम सब उसे साथ मिलकर खत्म करेंगे। तुम अकेली नहीं हो। अब हमें एक साथ खड़ा होना है ताकि कोई भी चीज हमें नहीं तोड़ सके। महनूर की आंखों में पहली बार खौफ के साथ साथ उम्मीद कि करण भी नमूदार हुई, लेकिन बाहर वो साया अभी भी मौजूद था, वो शख्स जो उसके माजी की धमकी और खौफ की अलामत था। महनूर जानती थी कि अब वो सिर्फ इंतजार नहीं कर सकती, हर लम्हा, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, अपनी अक्ल, हौसले और शामिर के साथ मुत्तहद होकर हर खतरे का मुकाबला करना। ये लम्हा कहानी का वो नुक्ता था जहां मोहब्बत, खौफ, मादी के राज और आने वाले खतरात एक साथ जुड़कर तूफानी अंजाम की जानिब बढ़ रहे थे। हर लम्हा एक नया सवाल पैदा कर रहा था, हर राज सामने आने के लिए तैयार था और हर फैसला मुस्तकबल की बुनियादें हिला देने वाला था। महनूर जानती थी कि अब उसका हर
इंतखाब न सिर्फ उसकी बल्कि शामिर और इस घर के तमाम लोगों की जिंदगी बदल सकता है, और इसलिए वो अपने हौसले को मजबूत कर रही थी, क्योंकि वक्त अब उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। रात का अंधेरा अब पूरे घर पर छा चुका था, मगर महनूर के दिल की बेचैनी और खौफ की रोशनी कहीं ज्यादा तेज थी। वो कमरे के एक कोने में बैठी थी, दुपट्टे के किनारे अपने हाथों में मजबूती से मरोड़ रही थी, और हर लम्हा उसके दिल की धड़कनें आसमान की गरज की तरह बुलंद हो रही थीं। वो जानती थी कि वो शख्स जो आज रात दरवाजे पर आया था अभी भी कहीं बाहर छिपा हुआ है। उसका माजी, उसकी धमकी और खौफ, सब कुछ उसके हर लम्हे पर छाया हुआ था। महनूर के जहन में एक सवाल मुसलसल दोहरा रहा था, अगर ये राज आज खुल गया तो शामिर, उसका घर और शायद पूरा खानदान किस हद तक खतरे में पड़ जाएगा। शामिर ने कमरे में कदम रखा। उसके चेहरे पर उलझन, फिक्र और मुहाफजाना जज्बात की आमेजिश नुमायां थी। वो महनूर के करीब आकर आहिस्ता से बोला। रात की खामोशी अब मुकम्मल तौर पर घर पर छा चुकी थी, लेकिन महनूर के दिल में एक तूफान उठ रहा था जो हर लम्हा इसके अंदर की उलझन, खौफ और बेचैनी को बढ़ा रहा था। वो कमरे के कोने में बैठी थी, दोपटे के किनारे हाथों में मरोड़ती हुई, और हर सांस के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। महनूर जानती थी कि वो शख्स जो आज रात दरवाजे पर खड़ा था अभी भी कहीं बाहर मौजूद है। उसका माजी, उसकी धमकी और खौफ हर लम्हा उसकी जिंदगी पर छाया हुआ है। वो सोच रही थी कि अगर ये राज आज खुल गया तो शामिर, वो घर और शायद पूरा खानदान किस हद तक खतरे में पड़ जाएगा। शामिर आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर फिक्र, उलझन और हिफाजत के जज्बात वाज़ेह थे। उसने महनूर के करीब आकर नर्म लहजे में कहा, महनूर, तुम मुझे सब कुछ बताओगी? मैं चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, हर खतरे का मुकाबला कर सकूं। महनूर ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, शमायर, अभी नहीं। अगर ये राज आज खुल गया तो तुम और तुम्हारा खानदान खतरे में पड़ जाएंगे। यही वजह है कि मैंने निकाह किया, तुम्हारी हिफाजत के लिए। मैंने तुम्हें अपने मादी की हकीकत से दूर रखने के लिए ये कदम उठाया, ताकि कम अज कम तुम महफूज रहो। शामिर ने उसके हाथ पकड़कर मजबूत लहजे में कहा, महनूर, तुम्हें ये बोझ अकेले नहीं उठाना। जो भी खतरा हो, जो भी माजी हो, हम सब उसे साथ मिलकर खत्म करेंगे। तुम अकेली नहीं हो। अब हमें एक साथ खड़ा होना है ताकि कोई भी चीज हमें न तोड़ सके। महनूर की आंखों में खौफ के साथ साथ उम्मीद कि करण भी नमूदार हुई, मगर वो जानती थी कि बाहर अभी भी वो साया मौजूद है, वो शख्स जो उसके माजी की धमकी और खौफ की अलामत था। उसने महसूस किया कि अब उसे हर लम्हा होशियारी से जीना होगा, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। उसका वाहिद रास्ता ये था कि अपने हौसले और शामिर की मदद से हर खतरे का मुकाबला करे। ये लम्हा कहानी का वो निकता था जहां मोहब्बत, खौफ, मादी के राज और आने वाले खतरात एक साथ जुड़कर तूफानी अंजाम की जानिब बढ़ रहे थे। हर लम्हा एक नया सवाल पैदा कर रहा था, हर राज सामने आने के लिए तैयार था, और हर फैसला मुस्तकबल की बुनियादें हिला देने वाला था। महनूर जानती थी कि अब उसका हर इंतखाब न सिर्फ उसकी बल्कि शामिर और पूरे घर की जिंदगी बदल सकता है, और यही हकीकत उसे मजबूत भी बना रही थी और खौफजदा भी। रात की खामोशी अब गहरी हो चुकी थी, लेकिन महनूर के दिल में झंझलाहट और खौफ का तूफान छाया हुआ था। वो कमरे के एक कोने में बैठी थी, दुपट्टे के किनारे अपने हाथों में मुरूड़ते, और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे हर लम्हा अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसके जहन में वो शख्स मुसलसल घूम रहा था जो आज रात दरवाजे पर खड़ा था। उसका माजी, धमकी और खौफ जो महनूर की जिंदगी के हर लम्हे पर छाया हुआ था। वो जानती थी कि अगर ये राज शामिर के सामने आज खुल गया तो न सिर्फ शामिर बल्कि पूरा घर और खानदान उसके असर से लरज सकता है। शामिर कमरे में आहिस्ता कदम रखते हुए दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर फिक्र, उलझन और हिफाजत के जज्बात नुमायां थे। उसने महनूर के करीब आकर नर्म लहजे में पूछा, महनूर, क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगी? मुझे सब कुछ जानना है ताकि मैं तुम्हारे साथ हर खतरे का मुकाबला कर सकूं। महनूर ने नजरें नीची करते हुए आहिस्ता कहा, शमायर, अभी नहीं। अगर ये राज आज खुल गया तो तुम्हारा खानदान सब खतरे में पड़ जाएंगे। यही वजह है कि मैंने निकाह किया, तुम्हारी हिफाजत के लिए। मैंने तुम्हें अपने मादी की हकीकत से दूर रखने के लिए ये कदम उठाया, ताकि तुम कम से कम महफूज रहो।
शामियर ने उसके हाथ पकड़कर मजबूत लहजे में कहा, महनूर, तुम्हें यह सब बोझ अकेले नहीं उठाना। जो भी खतरा हो, जो भी माजी हो, हम सब उसे साथ मिलकर खत्म करेंगे। तुम अकेली नहीं हो। अब हमें एक साथ खड़ा होना है ताकि कोई भी चीज हमें न तोड़ सके। महनूर की आंखों में खौफ के साथ साथ उम्मीद की रोशनी भी नमूदार हुई, मगर वो जानती थी कि बाहर वो साया अभी भी मौजूद है, वो शख्स जो इसके माजी की धमकी और खौफ की अलामत था। उसने महसूस क्या कि अब उसे हर लम्हा होशियारी से जीना होगा, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा और अपने हौसले और शामियर की मदद से हर खतरे का मुकाबला करना होगा। ये लम्हा कहानी के उस निकता का आगाज था जहां मोहब्बत, खौफ, मादी के राज और आने वाले खतरात एक साथ जुड़कर तूफानी अंजाम की जानिब बढ़ रहे थे। हर लम्हा एक नया सवाल पैदा कर रहा था, हर राज सामने आने के लिए तैयार था और हर फैसला मुस्तकबल की बुनियादें हिला देने वाला था। महनूर जानती थी कि अब उसके हर इंतखाब का असर न सिर्फ उसकी बल्कि शामियर और पूरे घर की जिंदगी पर पड़ेगा, और यही हकीकत उसे ताकतूर भी बना रही थी और खौफजदा भी।